welcome to all of you in now the next video we have the part 2nd of class 7 chapter 2 of geography. Okay, this is a chapter is our earth in surface and interior. I told you in last video the surface, continents and the ocean which of earth, and the interior part I told you 3 main layers: core, mantle and crust. Okay, so in this we read about this next one. हमने समझ लिया था कैसे उसका इनर पार्ट बना है. I told you in a quickly recap because की revision it's most important thing in a study. अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो it could be clear all these things in your mind. This is core, this is mantle and this is crust, and crust is a surface of our earth. ये our earth का surface है. आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो कोर, मेंटल और क्रस्ट है ये है क्या. तो मैंने आपको बताया फर्स्ट इज हम बात करेंगे सबसे ऊपर क्रस्ट की. ओके, दिस इज अ सरफेस जो लास्ट पॉइंट है जिस पे हम अभी खड़े हैं. ओके, सो क्रस्ट लेयर शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते चले जा रहे हैं दैट यू हैव कुड बी लर्न इट इजीली. क्रस्ट इट इज अ surface, it is earth's surface. The second is it has two. First is continental crust and the second is oceanic crust. Okay, I told you that day also in first video. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के पास में आती है एंड द ओशियानिक क्रस्ट जो हमारे ओशंस के पास में आती है, ओशन से नीचे आती है. ओके, द थर्ड पॉइंट इज वी फाउंड मैनी टाइप ऑफ रॉक्स. हम यहाँ क्या क्या मिलता है, बहुत सारी तरीके की रॉक्स मिलती हैं. द नेक्स्ट इज वी ऑल्सो डिवाइडेड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू शेल्स. ओके, इनटू शेल्स. 2 shells are there. The first is Sial and the second is Sima. In a short form we can say Sial and Sima. The Sial is made up by the 2 things, silica and the second is aluminium. Okay, the Sima is also contain the 2 things. The first is silica and the second is magnesium. Okay, so this is a crust layer. Earth surface has continental and oceanic types of rocks we found in this and the divided in the shells Sial and Sima. This is the crust layers short layer, and the crust continental crust has a 5 to 10 and the oceanic crust have the 20 to 50 and both are the can we say कि अगर आपको दोनों का नहीं करना है then 5 to 70 किलोमीटर्स एवरेज में ये हमें क्रस्ट लेयर मिलती है. इट मीन्स कि यहाँ से अगर हम इसकी सरफेस से बात करें तो यहाँ से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस तक हमें क्रस्ट लेयर मिलती है. द सेकेंड इज मेंटल लेयर. ओके, द मेंटल लेयर इज अ सेकेंड लेयर. आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि एग से हमने कंपेयर किया था, अनियन से कंपेयर किया था द लेयर्स ऑफ. ओके, सो द सेकेंड इज मेंटल लेयर. ये हमारी क्रस्ट हो गई एंड दिस इज अ मेंटल लेयर, दिस इज अ सेकेंड लेयर. तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इट इज सेकेंड लेयर. सेकेंड पॉइंट, इट कवर्स कोर. ओके, कोर जो लेयर है उसको ये कवर करती है. द थर्ड पॉइंट इज where crust and
मेंटल मीट, जहाँ पे कोर और मेंटल मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ मोरोविकिक. Okay, fourth point is it is also called as asthenosphere. Okay, the fifth point is its extend 670 kilometers to 2900 किलोमीटर्स. इसका जो रेडियस है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, सो ये 670 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है. द नेक्स्ट इज asthenosphere, morovicic, and the last one is it has minerals and magma. In this layer we found the minerals and the magma. So this is also complete. Now we come to the third one. This is a core. Okay, the core is a innermost, this one. Okay, last. So this is a third layer. It is called as a core. It is divided into two parts, inner core and outer core. So core, it is center of the earth. ये कैसी है, अर्थ का सेंटर पॉइंट है. यू कैन सी हियर ऑल्सो it is a center point. The second is it has divided into two parts. Which one the two parts is? Inner and outer. Inner core and the outer core. The third is it is in solid form. The mantle is in a liquid form, magma, okay, and the core is in a solid part. And the last point is its radius. Its radius is approx 3400 kilometers. So this is an introduction or some main points of to related with the crust, mantle and core. So we come to the next point of this chapter. Okay, आपको ये जब तक आप ये लर्न नहीं करेंगे ना दैट की कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, व्हाट इज द मेन पॉइंट्स, व्हाट इज द इफेक्ट बाय द डायग्राम एंड दीज ऑल थिंग्स, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत बार क्लियर किया है कि ये इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं. ओके, इनको लर्न करेंगे तभी हम इनके आगे के फॉर्म्स के बारे में सीख पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर देयर इज अ लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स व्हाट? लैंड मतलब जमीन, फॉर्म्स मतलब डिफरेंट काइंड. तो लैंड फॉर्म्स, हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं जिनको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओके, एंड द लास्ट इज माउंटेन्स. ये 3 मेन लैंड फॉर्म है जिनको हमने डिवाइड किया है. बट ये बनते कैसे हैं, ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बने कैसे हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एक माइंड चार्ट या एक फ्लो चार्ट. लैंड फॉर्म्स, हाउ टू क्रिएट द लैंड फॉर्म्स. इनकी 2 फोर्सेस की वजह से. फोर्सेस, कौन से फोर्सेस हैं? देयर इज द फर्स्ट इज इंडोजेनिक force. The second is here exogenic forces. इंडोजेनिक नाम से समझ में आ रहा है अंदर से लगने वाला, इनर साइड. ओके, तो इंडोजेनिक फोर्स कैसा होता है? जस्ट सपोज कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, जो भी प्रेशर, जो भी फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इंटीरियर से आउटर की तरफ आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इंडोजेनिक. ओके, और एक्सोजेनिक, अब इसके थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे कि इफ इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ,
विच वन फोर्स इज कम्स फ्रॉम द आउटर साइड. ओके, आउटर साइड कौन से फोर्स आ सकते हैं, लाइक स्टॉर्म आ गया, लैंड स्लाइड हो गया, दिस काइंड. और इनर साइड से कौन से आ सकते हैं, दिस इज अ एक्सो. इनर साइड से लाइक वॉल्केनिक एरप्शन, आपका अर्थक्वेक, है ना. तो दिस काइंड फ्रॉम द इनसाइड एंड इट इज कॉल्ड एज अ इंडोजेनिक, एंड विच फोर्सेस कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो दिस वन इज क्लियर. नाउ वी हैव divided in different parts. Endogenic have A, B and C. The A is earthquake. The second is volcanic eruption. Okay, and the last is landslide. इंडोजेनिक लैंडस्लाइड जस्ट बिकॉज कि जब वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक आएंगे तो जो हमारे हिल्स होते हैं ना, जो माउंटेन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और अपना सम पार्ट, जो कुछ ऊपर की जो स्लाइड्स हैं या जो कमज़ोर चट्टानें हैं, वो नीचे गिर जाती हैं. दैट्स वाई देयर इज राइटिंग द लैंडस्लाइड. अब एक्सोजेनिक हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज horizontal and the second is vertical. These are the forces. Okay, these are the forces. एक्सोजेनिक में दो तरीके के हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अब हॉरिजॉन्टल आप हमेशा याद रखो, हॉरिजॉन्टल एच में ऐसी लाइन बनी है ना बीच में, तो हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है ऐसे, किसी भी फोर्स का ऐसे या ऐसे लगना. ठीक है, अंडरस्टूड. किसी भी फोर्स का ऐसे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर उसको पुश, दोनों तरफ से पुल कर रहे हो. ठीक है, पुश और पुल, ये होता है हॉरिजॉन्टल. और वर्टिकल लंबे में, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर. लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर इन अ वर्टिकल पोजीशन, बट व्हेन आई एम लेइंग ऑन बेड, जब मैं बेड पे लेती हूँ तो कैसे रहती हूँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ओके, सो ऑलवेज लर्न कि एच में ऐसे लाइन बनी है तो हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है लेटा हुआ, एंड द वर्टिकल में वी ऐसे बना हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल, सीधा पॉइंट. क्लियर. एक्सोजेनिक फोर्सेस टू टाइप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. आई टेल यू हाउ. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, आप जस्ट सपोज कि आपने ये पेपर लिया, ठीक है. अब पेपर को आप ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर, ये कैसे पोजीशन में हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है. कैसी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल. ये कैसी है, वर्टिकल. ओके, हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कितने तरीके के लगते हैं. तो हॉरिजॉन्टल में भी टू टाइप लगते हैं फोर्सेस. पहला लगता है आपका कंप्रेस ओके फोर्स, एंड द सेकेंड इज टेंशन. टेंशन क्या होता है, खिंचाव होना, सर में मेरे को टेंशन हो रही है, इट मीन्स सर खिंच रहा है ना, सर में दर्द हो रहा है. और कंप्रेस फोर्स मीन्स क्या होता है, जब आपको कोई चीज पुश करती है, दबाती है. आई टोल्ड यू हाउ. हॉरिजॉन्टल फोर्स, कंप्रेस फोर्स. कंप्रेस, ये आपने हॉरिजॉन्टल लिया क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल इन लेइंग पोजीशन, एंड देन व्हेन यू क्रश इट, प्रेस कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो. कंप्रेस की हिंदी क्या होती है, दबाना. तो जब आपने इसको दबाया तो क्या हुआ, जस्ट लुक एट इट, क्या हो गया, ऐसे ऐसे लेयर्स बन गई. इसमें कैसी लेयर्स बन गई हैं, कुछ ऐसे करके बन गई है ना, दिख रहा है आपको. अब इसमें उतना क्लियर नहीं है बट बना है. ठीक है. टेंशन मीन्स क्या होता है, खींचना. अब इसी पेपर को मैं इतना ज़्यादा टेंस कर दूं, खींच दूं कि ये फट जाए बीच में से, तो भी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा टेंशन. ठीक है. तो हमने क्या सीखा, एक्सोजेनिक फोर्स हैव टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल हैज टू टाइप्स, कंप्रेस एंड टेंशन. कंप्रेस में हम जब प्रेस करते हैं तो लैंड फॉर्म्स कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं, और टेंशन में अब हमने उसी पेज को अगर फाड़ दिया तो क्या होगा, बीच में गैप हो जाएगा. ये गैप हो गया ना, बीच में फट जाएगा, वो अलग हो जाएगा. तो इट इज अ टेंशन फोर्स. वर्टिकल फोर्स, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं. दिस इज अ फ्लो चार्ट और माइंड मैपिंग, इनको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ तक समझ में आ गया, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक एंड दीज ऑल. नाउ वी कम टू द दिस पॉइंट, कंप्रेस फोर्स.
द कंप्रेस फोर्स ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, है ना, इसको भी हम कंप्रेस फोर्स, इसको भी हम 2 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। आई टोल्ड यू ना द डायग्राम इज दैट, है ना, ऐसा बन गया था। तो ये जो नीचे की लाइन है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक लाइन। जब ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं तो उसमें जो नीचे का पॉइंट है उसको हम सिंक लाइन कहते हैं, और ये जो ऊपर का पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एंटीक लाइंस। क्लियर? सिंक लाइंस, एंटीक लाइन। सिंक सिकड़ा हुआ, सिंक एंटी होना, ऊपर चला गया, वो एंटीक लाइंस। ओके, सो दिस इज अ सिंक लाइन एंड एंटीक लाइन फॉर द compress forces. I hope these all things are clear by me. Antic lines, sink lines, horizontal force, vertical force, endogenic, exogenic, and these all. In next is इन सब के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लैंड फॉर्म्स, हाउ टू क्रिएट द लैंड फॉर्म्स। ये तो हमने फोर्सेस पढ़ लिए कैसे होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं और उनमें कैसे वर्क होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, ऑलवेज revise your topics again and again, study your book, read many times your chapter. Okay, thank you.